Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, big and the bold. Ding dong, that is their song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, holly pond, raising the sound, oh, hill and dance, how their tones gaily they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here, merry, 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 merry Christmas, merry, 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 merry Christmas. मन ललचाया, सेंटा क्लॉज आएंगे, नए खिलौने लाएंगे, सेंटा क्लॉज ने दी आवाज, बच्चों का ये दिन है आज। तो इसी प्यार और उल्लास के साथ आप सभी को नमस्कार। So with immense pleasure, I would like to welcome our esteemed principal ma'am, worthy teachers and my dear friends. इस कोरोना वायरस के काल से सब हुए बेहाल। इस क्रिसमस पर आपको मिली ढेरों उपहार, खुशियों का साथ, अपनों का प्यार और खूब अच्छा हो आपका आने वाला साल। तो बुलाते हैं प्यारे कुणाल को एक प्यारे से संदेश के साथ। Morning, ma'am. My name is Kunal Rohila from class first. Christmas is a famous festival of Christians. Christians celebrate this festival on 25th of December. Jesus had been on this beautiful day of Christmas, which is why people celebrate this day as a festival. Thank you. Now our little starry are coming to commemorate the birth of Jesus Christ by a play. So please welcome them by a huge round of applause. About 2000 years ago, in a small town named Nazareth, there lived a young girl named Mary. She was not married, but real soon to a good man named Joseph. One day, a very important angel appeared to Mary. I am Gabriel. You have found favor with God. God has sent me here to tell you that you will have a son and he will be called Jesus and will be called Son of God. The handmaid of the Lord, may God do with me as he wants to. The Emperor Caesar Augustus says that all of you need to pay some taxes now. So Mary and Joseph made their way to Bethlehem. When they reached Bethlehem, all the places were full. Mary was about to have a baby. Mary, you wait here. I will try to find a suitable place for us to stay. I have tried almost the inns and all are full. Please don't worry. I am sure God will provide a place for us. Near Bethlehem that night, there were some shepherds keeping a watch over their flocks of sheep. Suddenly an angel appeared. I have a good news for you. There is a Savior who has been born. Is it true? Where can we find him? Just follow the star. God sent
and was born in a humble small stable. They spread the news, and everyone who heard was in wonder. चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है, सितारों ने आसमां को सजाया है और हमारे नन्हे नन्हे बच्चों ने अपने डांस से हमेशा हमको रिझाया है. So let's welcome our little dancers to steal our heart. Which is sung to welcome the festivities of the occasion. But this year is very special as our charming teachers are coming to sing this carol for us. So, are you excited? Let's enjoy Teacher's Carol. Children enjoy the festivity of season by wearing Christmas caps and costumes and by sharing gifts with their friends. But today, dear Alok is coming on the stage to share his thoughtful message with all of us.
your Christmas is blessed in all the best ways, and the new year brings lots of reasons for joy. Merry Christmas. Thank you. With the spark of Xmas and enthusiasm for New Year, we are also celebrating Swami Shraddhanandji Balidan Divas. Swami Shraddhanandji, also known as Mahatma Munshi Ram Vij. He was an independence activist and an Arya Samaj sannyasi who propagated the teaching of Dayanand Saraswati. तो बुलाते हैं हमारे प्यारे डीएवियंस को, जो आज आपके सामने एक नाटक के द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस का महत्व प्रस्तुत करेंगे। सभी को मेरा शत शत नमन। आज हम सभी स्वामी श्रद्धानंद जी को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम स्वामी श्रद्धानंद जी को एक नाटक के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी संवत 1913 विक्रमी सन 1856 ईस्वी को जिला जालंधर के तलवन ग्राम में हुआ था। आइए अब हम चलते हैं गुरुकुल की ओर। हमें खबर मिली है कि तुम्हारे गुरुकुल में बम है। क्या तुम यहाँ बम बनाते हो? हाँ, हम यहाँ पर बम बनाते हैं। आओ मैं तुम्हें यहाँ के बम दिखाता हूँ। चलो। आइए, ये है हमारे बम। इनमें से एक एक बम तुम्हारे हजारों बम से भी शक्तिशाली हैं। जिस दिन ये बम फूटेगा, पूरा देश सत्य, अहिंसा और प्रेम से भरा होगा। अन्याय, आतंक समाप्त हो जाएगा। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हैं। चले, ढूंढे। छुपा छुपा चांद डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। ठहरिए, अगर आप बम ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ ही गए हैं तो बम बनाने का फॉर्मूला लेते जाएं। ये है बम बनाने का फॉर्मूला। इसे पढ़कर तुम भी अच्छे बम बनोगे। ये क्या है? ये बम बनाने का फॉर्मूला है? वो हमें बेवकूफ समझता है क्या? क्या करूं मैं इसे झारखंड का? क्या करूं मैं इसे झारखंड क्या? ब्रिटिश सरकार के द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया जाता है, जिसका स्वामी श्रद्धानंद जी कड़ा विरोध करते हैं। रॉलेट एक्ट का ये कानून एक दमनकारी कानून है, जिसके अनुसार कभी भी किसी सरकारी गतिविधि के विरोध में केवल शक के आधार पर उसे सिर्फ 2 साल के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें ऐसे कानून का विरोध करना चाहिए। ये आर्यों का देश है, इस पर आर्यों का ही शासन होना चाहिए, किसी विदेशी का नहीं। पर स्वामी जी, हम शासन कैसे बदल सकते हैं? और वैसे भी आज हम इस कानून के बारे में बात करने के लिए जमा हुए हैं। इस कानून को तोड़ना ही शासन को उखाड़ फेंकने की शुरुआत होगी। हमें एक सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र बनाकर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे और जो जहां है उसे वहां ही कड़ा आंदोलन चलाना होगा। सरकार के डर से ऐसे प्रतिज्ञा पत्र पर कौन हस्ताक्षर करेगा?
दूसरों का तो पता नहीं, पर मैं इस प्रतिज्ञा पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करूंगा। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रोलेट एक्ट वापस लो, रोलेट एक्ट वापस लो। स्वामी श्रद्धानंद जी शुद्धि आंदोलन के कार्य में लग जाते हैं। कौन कहता है आप अछूत है? हम आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं। आप हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है। ये सत्य है कि आपको सदियों से अछूत कहकर समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया है, पर हम अपने हर दलित भाई के साथ हैं। हम साथ मिलकर भोजन करेंगे और इन्हें हृदय से स्वीकार करेंगे। मुस्लिम नेता स्वामी जी के इस शुद्धि आंदोलन से बहुत नाराज होते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था ये स्वामी हम सब के लिए इतना बड़ा खतरा साबित होगा। इसने तो हम सब मुसलमानों के दिमाग की घंटी बजा रखी है, और ऊपर से ये स्वामी और इसके कार्यकर्ता गांव-गांव घूमकर हम सब मुसलमानों को हिंदू बनाना चाहते हैं, और हम सोचते हैं हम इन अछूतों को मुसलमान बना दे। और ये स्वामी इन लोगों के लिए आर्यनगर बस्ती बना रहा है, और हम यहाँ बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। हमें इसके बारे में कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा सभा का आयोजन किया जाता है। स्वामी जी, आपके शुद्धि आंदोलन से मुसलमान नाराज हो रहे हैं। पर मैं तो समाज के पीड़ित और तिरस्कृत लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे मुसलमान भाइयों को नाराज होना चाहिए। स्वामी जी, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और आप उसके सदस्य हैं। हम नहीं चाहते कि किसी समुदाय के लोग नाराज हो। गांधी जी, मैंने जो भी कार्य किया है बड़ी श्रद्धा के साथ किया है, इसलिए संन्यास धारण करते वक्त अपना नाम श्रद्धानंद रखा। हमें सभी को एक ही नजर से देखना चाहिए, पर यदि कोई किसी को दलित समझकर उसके साथ षड्यंत्र करता है तो मेरी मानव श्रद्धा कहती है कि मैं उसकी मदद करूं। यदि कांग्रेस पार्टी को इससे जरा सा भी नुकसान हो रहा है तो मैं उसकी सदस्यता से अभी त्याग पत्र देता हूं। स्वामी जी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि अंग्रेजी शासन से हमें मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है। अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने का सबसे उचित तरीका है पंचायती अदालतों की स्थापना है। गांव के मसले गांव में ही सुलझा दिए जाए, जिससे पुलिस व अदालतों की जरूरत ही ना रहे, वो नाकाम हो जाए। इसलिए आप सभी अपने अपने गांव में जाइए और वहां पंचायती शासन की व्यवस्था की शुरुआत कीजिए। और आप जो भी काम करें उसकी भाषा हिंदी ही होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना ही चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, हम सब इसका पालन करेंगे। एक मुस्लिम महिला अपने पति के अत्याचारों से परेशान होकर स्वामी जी के पास आती है और अपना धर्म परिवर्तन कर लेती है। स्वामी जी, कौन है धर्मपाल? स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए। स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए। मैं असगरी बेगम हूँ। मैं एक बेटा से भागते भागते यहाँ तक आई हूँ। स्वामी जी, मुझे बचा लीजिए। तुम शांत हो जाओ, तुम यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हो। आप जिसे असगरी बेगम कह रहे हैं, अब वो शांति देवी है, और मैंने उसे जबरदस्ती हिंदू नहीं बनाया। आप मुझसे पूछने की बजाय स्वयं शांति देवी से ही पूछ लीजिए। देखो असगरी, इस कमरे में तुम्हें कोई नहीं सुन रहा है। अगर तुम्हें जबरदस्ती हिंदू बनाया गया है तो एक बार बता दो, कसम पर्वत निगार की उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ,
मैं अपनी मर्जी से हिंदू बनी हूँ और मैं वापस वहाँ नहीं जाऊंगी जहाँ एक औरत की इज्जत नहीं होती है। स्वामी, मेरी बेटी का है। जहाँ भी है सुरक्षित है। उसका पति उसे लेने आया है। मैंने तो सुना है तुम्हारे धर्म में जबर मंजूर नहीं। जब वह नहीं आना चाहती तो तुम क्यों ले जाना चाहते हो? तुम भूलो मत, हम पठान है। मैं अपना सर हथेली पर रखता हूँ। तुम आग से खेल रहे हो। हमारे धर्म में प्रेम, अहिंसा और सत्य है। तलवारें मिट जाती है और तलवार चलाने वाले भी, लेकिन सत्य, अहिंसा और प्रेम नहीं। स्वामी श्रद्धानंद जी अस्वस्थ हो जाते हैं और उनकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा जाता है। 23 दिसंबर 1928 को अब्दुल रशीद नाम के मुस्लिम युवा ने पिस्तौल की 3 गोलियों से उन्हें शहीद कर दिया। अपने समस्त जीवन को धर्म, राष्ट्र, राष्ट्रभाषा और जनता की सेवा में अर्पित करके यह दिव्य ज्योति परम ज्योति में समा गई। मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं स्वामी जी से मिलने आया हूँ। मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक बार दर्शन ही करवा दीजिए। बहुत कमजोर हो गया हूँ, पर इतना कमजोर भी नहीं हुआ कि तुम इतनी दूर से चल कर आओ और मैं तुमसे मिलूं। कोई विशेष कार्य है? आपसे इस्लाम पर चर्चा करनी थी। अभी तो मैं असमर्थ हूँ, तुम फिर आना। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। मन जिसने निज देश मेरा मन जिसने जिस देश मेरा धन्यवाद सभी खोया, धन्यवाद सभी अपना, धन्यवाद सभी अपना। आर्य समाज को दिया साकार किया सपना, आर्य समाज को दिया साकार किया सपना। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। मने जिसने निज देश में जमाया है, जिसने इस देश पे